Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature, lesson 9, the Great Stone Face. First, okay, this lesson has been written by Nathaniel Hawthorne. यानी author of this lesson is Nathaniel Hawthorne. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. Hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the Valley of Prophecy. What was it? Did it come true? Did it come true? स्टूडेंट्स, दूर से देखने पर पर्वतों के शिखर तथा विशाल चट्टानें और दूर से देखने पर पर्वतों के शिखर तथा विशाल चट्टानें अनेक आकारों से दिखाई पड़ती हैं। वे किसी पशु या मनुष्य से मिलते जुलते हो सकते हैं। लोग इन आकृतियों से कुछ कथाएं बुन लेते हैं, कुछ कहानियां सच हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। विशाल पथरीला चेहरा भी एक ऐसी आकृति है जो किसी घाटी के निवासियों को एक भविष्यवाणी की याद दिलाते हैं। वह क्या थी? क्या वह सच निकली? ओके, डिड इट कम ट्रू? क्या वह सच निकली है? One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the Great Stone Face. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. ओके, यानी एक दोपहर जब सूर्य छिपने को था, एक माँ तथा उसका नन्हा लड़का अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे उस विशाल पथरीले चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें केवल अपनी आंखें उठानी थी और इसे सामने समतल मैदानों में मीलों दूर स्थित अपने सभी भागों विशेषताओं सहित धूप में चमकते हुए देखा जा सकता था। ओके, एंड व्हाट? And what was Great Stone Face? ओके, यानी और ये विशाल पथरीला चेहरा क्या था? The Great Stone Face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance, they resembled the features of a human face. If the spectators approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks, piled one upon another. But seen from a distance, the clouds clustering about it, the Great Stone Face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर author कहते हैं कि एक विशाल पथरीला चेहरा क्या था, यानी and what was the Great Stone Face? यह विशाल पथरीला चेहरा प्रकृति की देन था जो पर्वत के एक और विशाल चट्टानों से बना था। सभी चट्टानें दूर दूर तक मिलती हुई इस प्रकार बिखर सी गई थी कि वे मनुष्य के चेहरे से समानता दिखाती थी। यदि दर्शक उनके अति निकट पहुंच जाता था तो वो दीर्घाकार विस्तृत चेहरे की बाहरी आकृति खो देता और तब वह केवल विषम चट्टानों के झुरमुट को ही देख पाता। परंतु दूर से देखने पर विशाल पथरीला चेहरा बिल्कुल मानव सा जीता जागता दिखाई देता था। ओके,
मानव की तरह वो दिखाई देता था। एंड मदर सेड, a mother said her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, पहले भी कहा था कि एक माँ तथा उसका छोटा बालक अपने घर की दहलीज पर बैठे उस विशाल पथरीले चेहरे को निहार रहे थे और इसके बारे में बात कर रहे थे। बालक का नाम अर्नेस्ट था। ठीक है। माँ उसने कहा मदर सेड ही, while the great face smiled on him, I wished that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. Okay. In this stanza, author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो जो है छोटा सा बालक जो था दहलीज पर बैठे उस विशाल पथरीले चेहरे को निहार रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। बालक का नाम अर्नेस्ट था। उसने कहा माँ, जबकि वह विशाल चेहरा उस पर मुस्कुरा रहा था। मेरी इच्छा है कि काश वह बोल सकता, क्योंकि वह देखने में इतना दयालु दिखाई पड़ता है, तो उसकी आवाज़ भी अवश्य ही मधुर होगी। यदि मुझे कभी इस शक्ल का आदमी दिखाई पड़ा तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, मैंने बहुत अच्छे से बिहेव करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with actually such a face as that. Okay. And we prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यदि एक प्राचीन भविष्यवाणी सबको हो जाए, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट कि यदि एक प्राचीन भविष्यवाणी सच हो जाए, ओके, इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, सच हो जाए तो उनकी मामूली, तो शायद हम कभी बिल्कुल इसी तरह के चेहरे वाले व्यक्ति को देख पाएंगे। ओके। प्यारी माँ, किस भविष्यवाणी की बात कर रही हो? अर्नेस्ट ने जिज्ञासापूर्वक कहा। कृपया मुझे इसके बारे में बताओ, कृपया मुझे इसके बारे में, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। ओके। सो his mother told him a story that her own mother had told her when the herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born. Please turn over. Child should be born near here, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Many still had faith in this old prophecy, but others looked it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not appeared. Okay. Had not appeared. In this stanza, author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इसलिए उनकी माता ने ये कहानी सुनाई। ओके। और जो उसकी अपनी माँ अर्नेस्ट की नानी ने उसे तब सुनाई थी जब यह नन्हे अर्नेस्ट से भी छोटी थी। कभी भविष्य में
यहाँ आसपास एक लड़का पैदा होना चाहिए जो अपने समय का महानतम तथा दयालु व्यक्ति होगा तथा उसका चेहरा बड़े होने पर इसी विशाल पथरीले चेहरे से पूर्णतया मिलता जुलता होगा। लोग इंतजार करते और इंतजार करते रहे, परंतु उन्होंने इस प्रकार के चेहरे वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट। ओके, ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स above his head, I do hope that I shall live to see him. Okay. And his mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. Okay, यानी ओ माँ, अर्नेस्ट चिल्लाया, मुझे आशा है कि मैं उसे देखने के लिए जिंदा रहूंगा। ओके, उसकी माँ एक स्नेहमयी तथा विचारशील स्त्री थी। यह उचित था, उसने सोचा कि अपने नन्हे लड़के की काल्पनिक आशाओं को हतोत्साहित न किया जाए, अतः उसने उसे कहा, शायद तुम ऐसा कर सको। एट अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. It was always in his mind whatever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. ओके, यानी और अर्नेस्ट यह कहानी कभी नहीं भूल पाया जो उसकी माँ ने बताई थी। जब भी वह विशाल पथरीले चेहरे को देखता, वह कहानी उसके दिमाग में खुद ब खुद आ जाती थी। उसने अपना बचपन घाटी में बिताया था और अपने नन्हे हाथों से तथा अपने प्यार भरे दिल से अपनी माँ की सहायता की थी। इस तरह से वह खुशहाल तथा प्यारे बालक से सौम्य तथा शांत युवक के रूप में बड़ा हो गया। वो जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। अर्नेस्ट had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अर्नेस्ट का कोई अध्यापक नहीं था, यानी अर्नेस्ट को कोई गुरु नहीं मिला था, अर्नेस्ट का कोई अध्यापक नहीं था, किंतु यह महान पथरीला चेहरा उसका गुरु बन गया। ठीक है, और जब दिन का कार्य समाप्त हो जाता, वह इसकी तरफ घंटों तक देखता रहता, जब तक कि वह कल्पना नहीं करने लग जाता। वे विशाल आकृतियाँ उसे पहचानती हैं, उसे दयालुता की मुस्कुराहट और साहस देती हैं। ओके, about this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and, being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस समय तक, यानी अबाउट दिस टाइम, इस समय तक घाटी में एक अफवाह फैली हुई थी कि वह महान व्यक्ति जो उस विशाल पथरीले चेहरे जैसा दिखाई देता है,
घाटी में अंततः आ गया था। ऐसा लगता है कि बहुत वर्ष पहले एक नवयुवक जो घाटी छोड़कर चला गया था और दूर एक समुद्री बंदरगाह पर बस गया था। गैदरगोल्ड, जो उसका नाम था, ने एक दुकान खोल ली थी और व्यापारिक मामलों में कुशाग्र होने के कारण वह एक बहुत धनवान व्यापारी बन चुका था। जिस वस्तु को वह छू लेता था वह मानो सोने में बदल जाती थी। उसी दौरान उसे अपने वतन की याद हो आई और उसने वहां वापस जाने का निर्णय लिया, अपने अंतिम दिन वहां व्यतीत करने चाहे जहां वह पैदा हुआ था। ओके, ही हैड बीन बोर्न, यानी जहां वह पैदा हुआ था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." ओके, यानी अर्नेस्ट इस विचार से वह महान आदमी, योग्य आदमी, भविष्यवाणियों वाला आदमी इतने युगों के इंतजार के बाद उसकी पैतृक घाटी में जल्दी ही दिखाई देने वाला था, पूरी तरह हिल गया। एक दिन जब वह लड़का घाटी में टकटकी लगाकर देख रहा था और वह ये कल्पना कर रहा था कि वह पथरीला चेहरा भी उसे वापस जवाब में टकटकी लगाकर घूर रहा था, तभी पहियों की आवाज़ सुनाई दी और लोगों की भीड़ चिल्लाई, "लो, महान मिस्टर गैदरगोल्ड आ गए हैं।" ओके, अ कैरियज drawn by 4 horses dashed round the turn to the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not, Ernest, the man will come." Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक गाड़ी सड़क के मोड़ पर पहुंची, खिड़की में से पीली त्वचा वाले एक वृद्ध आदमी का चेहरा दिखाई दिया और वही है विशाल पथरीले चेहरे की प्रतिमूर्ति यानी परछाई। लोग चिल्लाए। एक अर्नेस्ट को जो बात अत्यधिक परेशान कर गई थी, यानी व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, यानी अर्नेस्ट को जो बात अत्यधिक परेशान कर गई थी वह थी वे यह यकीन कर रहे थे कि वह समानता मौजूद थी उसके जिसके बारे में वो बात करते थे। वह उदासी से मुड़ा तथा घाटी में ऊपर की ओर देखा जहाँ विशाल चेहरा कुछ कहता सा प्रतीत होता था। वह अवश्य आएगा, डरो नहीं अर्नेस्ट, वह आदमी यानी वह व्यक्ति अवश्य आएगा। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। The years went on and Ernest grew to be a young man. Okay, he attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face there. Their idea was that this was a folly, but pardonable because Ernest was industrious, kindly,
kind and neighborly. They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. They did not know that from this would come a better wisdom than could be learnt from books. Neither did Ernest know that the thoughts which come to him so, please turn over, naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone that loose which all men shared with him, a simple as when his mother first told him the story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वर्ष बीतते गए, द ईयर्स वेंट ऑन, यानी बहुत सारे वर्ष बीतते गए और अर्नेस्ट एक जवान व्यक्ति बन गया, यानी बड़ा हो गया। उसने घाटी के निवासियों का थोड़ा सा ध्यान खींचा। उन्होंने उसके जीवन में कोई विशेष बात नहीं थी, केवल इस बात के कि जब सारे दिन का काम समाप्त हो जाता वह महान चट्टानों जैसे चेहरे को देखना और अब भी पसंद करता था। उसका विचार था कि वह मूर्खता है किंतु क्षमा योग्य है, क्योंकि अर्नेस्ट एक मेहनती, दयालु और मित्रता का भाव रखने वाला था। उन्हें नहीं मालूम था कि महान पथरीला चेहरा उसका गुरु बन चुका है और जो भाव इसमें था उस युवा व्यक्ति के हृदय को विशाल बना दिया और दूसरों के हृदय की अपेक्षा ज़्यादा सहानुभूति भर दी थी। वे यह नहीं जानते थे कि किताबों की अपेक्षा इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ना ही व्यक्तियों से ऊंचे दर्जे, और ना ही अर्नेस्ट यह जानता था कि खेतों में या आग के पास बैठे हुए जो विचार प्राकृतिक रूप से उसके अंदर आ जाते थे वे उन सभी व्यक्तियों से ऊंचे दर्जे के होते थे जो लोग उससे करते थे। एक साधारण आत्मा, इतनी साधारण जितनी वह तब थी जब उसकी माता ने पहली बार उसे पुरानी कहानी सुनाई थी, तब से वह इस शानदार चेहरे को नीचे घाटी में देखा करता था और अभी भी वो हैरान था कि उसका जो मानव प्रतिरूप आने में इतनी देर क्यों लगा रहा था। ओके, यानी तब से वह इस शानदार चेहरे को नीचे घाटी में देखा करता था और अभी भी वो हैरान था कि उसका मानव प्रतिरूप आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body, and spirit of his existence had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the merchant and the majestic face upon the mountain. Okay, यानी in this stanza author says that इस समय तक मिस्टर गैदरगोल्ड मर चुका था और उसे दफना दिया गया था। उसकी संपत्ति जो उसके अस्तित्व और शरीर के अनुरूप थी, उसकी मौत से पहले ही अदृश्य हो गई थी। जब से उसकी समृद्धि की स्थिति समाप्त हुई थी, इस पर आम सहमति बन गई थी कि बर्बाद हो चुके व्यापारी तथा पर्वत पर स्थिर चेहरे में कोई अधिक समानता नहीं थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. Okay, old and tried now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitant, his
old neighbors and their grown-up children prepared in welcome the renewed commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it, for the sake of knowing actually how General Blood and Thunder looked. Okay, in this stanza, author says that, यहाँ पर ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि घाटी का एक अन्य बेटा जो कि कई वर्षों पूर्व सैनिक बन गया था, अत्यधिक कठिन लड़ाइयों के पश्चात अब वह एक प्रसिद्ध कमांडर बन चुका था। वह युद्ध भूमि में ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। ओके, ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। अब वह बूढ़ा और थका होकर उसने आखिरकार अपनी घाटी में लौटने की इच्छा जाहिर की। घाटी के निवासी उस विख्यात सैनिक का स्वागत करने के लिए कृत संकल्प थे, विशेष रूप से क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि विशाल पथरीले चेहरे की समानता वास्तव में मिल ही गई। उसके बचपन के मित्र यह कहने को तैयार थे कि जनरल हमेशा उस पथरीले चेहरे जैसा दिखाई पड़ता था। अतः घाटी में उत्साह का माहौल था, और जिन लोगों ने उस महान पथरीले चेहरे को देखने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, उसे देखने के लिए अब बहुत सा समय लगा दिया गया। ठीक है, मात्र यह जानने के लिए कि जनरल ब्लड और थंडर वास्तव में कैसा दिखाई देता था। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. Soldiers stood on guard.